Hello everyone, welcome back. Now in object oriented programming we had started unit number 3. In that the topic is inheritance. Now we had already learned what is inheritance and types of inheritance. Now today I am going to explain you the second type of inheritance, that is multi-level inheritance. Now let me revise what is multi-level inheritance. When a class is derived from a class which is also derived from another class, such inheritance is called as multi-level inheritance. And the level of inheritance can be extended to any number of levels depending upon the relation. Multi-level inheritance is similar to relation between grandfather, father and child. Now it is not uncommon that a class is derived from another derived class, like as I described in the diagram. Here the class A serve as a base class for derived class B, which in turn serve as a base class for derived class C. So here the class B is known as intermediate base class since it provides a link for the inheritance between class A and class C. Here the chain ABC is known as inheritance path. Now let us consider a simple example of multi-level inheritance. Assume that the test result of a batch of students are stored in 3 different classes. Here class student store the roll number and name, which has 2 member function, get data and put data. Get data is used to accept the value of roll number and name, and put data is used to display roll number and name. Here class score store the marks obtained in 2 subjects, and here subject 1 and subject 2 is protected data member, which I display in green color, and get marks and put marks are 2 member functions, public member functions. Get marks is used to store the accept the marks, and put mark is used to display that 2 subject marks. Now here class result contain the total marks obtained in the test, and the class result can inherit the detail of the marks obtained in the test and roll number of students through multi-level inheritance. Here, as I said, subject 1 and subject 2 are protected data members. Now protected access modifier is similar to of private access modifier, but private member are accessible within the same class in which they are declared, but protected members are accessible within the same class and within the derived class or subclass, and the data members and member functions declared in public section can be accessed by other classes too, right? So the class member declared as protected are inaccessible outside the class, but they can be accessed by any subclass of the class, right? So here I declared subject 1 and subject 2 as protected, so we cannot access these 2 data members outside the class, but it can be accessed in derived class. So result is the derived class, right? So let me explain this example in Turbo C. So here I explain the definition. Now let me start with header file has include iostream.h and has include conio.h. Now first write the class student. In that let us take integer roll number and character name as 20 length. नाउ पब्लिक हियर प्राइवेट की जगह पे हम इसको प्रोटेक्टेड भी ले सकते हैं, सो दैट वी कैन यूज़ इट इन चाइल्ड क्लास. सो पब्लिक सेक्शन में हम void get data and void put data लिखना है.
let us write another class score or class test. Then in that protected data member like integer subject 1, integer subject 2, and public member function void get marks and void put marks. नाउ उसकी डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे. नाउ स्कोर क्लास जो है वो स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट करता है तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, पब्लिकली इनहेरिट करता है तो पब्लिक लिखना है. एंड देन क्लास नेम, कौन सा क्लास है, स्टूडेंट क्लास है. ठीक है, सो हमने इनहेरिट कर दिया है स्टूडेंट क्लास को स्कोर क्लास में. नाउ लास्ट क्लास लिखना है रिजल्ट, वो इनहेरिट करेगा स्कोर क्लास को, तो फिर से कॉलन, सॉरी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं, कॉलन एंड देन पब्लिक एंड यहाँ पे लिखना है स्कोर क्लास नेम. नाउ हियर वी कैन राइट प्राइवेट डेटा मेंबर्स, क्योंकि हम इसको इनहेरिट नहीं करने वाले, फ्लोट एंड पब्लिक मेंबर फंक्शन लाइक void display which is used to display the result of this student. Right, now let me define the function. First one is get data, तो return type, then class name student, scope लिखना है and then get data. Right, so हम यहाँ पे मैसेज में लिख सकते हैं सी आउट, यूज़र थ्रू एक्सेप्ट करेंगे लाइक एंटर रोल नंबर, सी इन RNO, देन सी आउट से एंटर नेम, सो सी इन थ्रू नेम. राइट, वैसे ही हम यहाँ पे पुट डेटा फंक्शन लिखते हैं. पुट डेटा स्टूडेंट क्लास का है तो स्टूडेंट क्लास नेम एंड देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन पुट डेटा फंक्शन नेम. अब डेफिनेशन में सिर्फ हम डिस्प्ले करेंगे लाइक सी आउट स्लैश एन रोल नंबर इक्वल टू RNO एंड सी आउट स्लैश एन नेम इक्वल टू नेम. ठीक है, नाउ ये पहले क्लास में जितने भी मेथड है वो हमने लिख लिया है. नाउ सेकंड क्लास के फंक्शंस है void get marks and put marks. यहाँ पे सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के मार्क्स को हमें रीड करना है तो void score class with scope resolution operator get marks. in that हम सेम वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे सी आउट थ्रू लाइक एंटर सब्जेक्ट 1 मार्क, सी इन subject 1, again see out, enter subject 2, so see in subject 2. ठीक है, तो सब्जेक्ट 1 और 2 के मार्क्स यहाँ पे गेट कर रहे हैं. अब डिस्प्ले करने के लिए फिर से स्कोर पुट मार्क्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे लाइक सी आउट स्लैश एन सब्जेक्ट 1 के मार्क्स है सब 1 एंड सी आउट स्लैश एन सब्जेक्ट 2 के मार्क्स है सब 2. ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स भी डिस्प्ले हो गया. नाउ वी हैव टू डिक्लेयर लास्ट डेफिनेशन ऑफ डिस्प्ले फंक्शन. सो हमें डिस्प्ले फंक्शन लिखना है तो void वो कौन से क्लास का फंक्शन है, रिजल्ट क्लास का, और डिस्प्ले. ठीक है, नाउ यहाँ पे डिस्प्ले क्या होगा, टोटल, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा है फ्लोट, लेकिन फ्लोट इंटीजर टोटल और दूसरा वेरिएबल भी हम लिखते हैं यहाँ पे फ्लोट परसेंटेज क्या होगा वो भी डिस्प्ले करते हैं सपोज. सो डिस्प्ले में हमें क्या करना है, टोटल इक्वल टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2
एंड परसेंटेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो वो हमें डिस्प्ले करना है। तो सी आउट स्लैश एन टोटल इक्वल टू टोटल एंड सी आउट स्लैश एन परसेंटेज इक्वल टू PER, राइट। तो यहाँ पे हमने सभी क्लास लिख लिए हैं। नाउ लेट अस राइट मेन फंक्शन लाइक इंटीजर मेन। लेट अस राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन। सो यहाँ पे मैंने लिखा है CLR SCR गेट CH रिटर्न 0। नाउ हमें ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का बनाना है? लास्ट क्लास जो लिखा है उसमें, मतलब लास्ट जो क्लास डिराइव किया है वो उसके क्लास का। सो लास्ट क्लास हमने कौन सा लिया है? रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल R। सो पहले हमें क्या करना है? सभी फंक्शन को कॉल करना है जिससे वैल्यू एक्सेप्ट होगी। लाइक पहला R डॉट गेट डेटा, क्योंकि गेट डेटा में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, रोल नंबर एंड नेम। फिर हमें मार्क्स लेना है, तो R डॉट गेट मार्क्स। ठीक है, एंड द लास्ट वन फिर क्या करना है? ओके, सारे इंफॉर्मेशन गेट हो गई, अब डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? R डॉट पहले क्या डिस्प्ले होना चाहिए? पुट डेटा, स्टूडेंट के सारे डेटा, रोल नंबर एंड नेम। देन R डॉट क्या डिस्प्ले होना चाहिए? मार्क्स डिस्प्ले होना चाहिए, तो पुट मार्क्स एंड फाइनल में रिजल्ट। सो R डॉट डिस्प्ले जो टोटल परसेंटेज को डिस्प्ले करेगा, राइट। नाउ लेट अस कंपाइल इट, 0 एरर। लेट अस रन इट। रोल नंबर फॉर एग्जांपल 101 XYZ। सब्जेक्ट 1 ने फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 100 89 एंड यहाँ पे 91 मार्क्स आए हैं। ठीक है, सो 180 टोटल हुआ, परसेंटेज 90 हुए। क्लियर? अंडरस्टूड दिस, राइट। डिस्प्ले हो रहा है, तो हम ऐसे मेथड को हम कॉल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमने डिस्प्ले मेथड जो है पुट डेटा एंड पुट मार्क्स, वो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे निकाल के ये डिस्प्ले मेथड में भी कॉल कर सकते हैं। सो दैट यहाँ पे अगर हमने कॉल कर दिया ये मेथड में, तो यहाँ पे अगर ये कॉल कर दिया हमने डिस्प्ले में ही, लाइक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, पुट डेटा एंड पुट मार्क्स, तो यहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम डिस्प्ले कॉल करेंगे इट विल कॉल ऑटोमेटिकली दिस टू, राइट। सो लेट अस रन अगेन। रोल नंबर 101 XYZ। सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल 70 एंड 55 मार्क्स आ गए। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर परसेंटेज कितने आए? 62, राइट। अंडरस्टूड दिस। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ पब्लिकली डिराइव किया है, आप प्राइवेटली और प्रोटेक्टेडली भी डिराइव करके देख सकते हो। क्लियर? अंडरस्टूड? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस देन यू कैन मैसेज मी, यू कैन आस्क मी। सो यहाँ पे मैंने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एक्सप्लेन किया है। ये प्रोग्राम में अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी इशू हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट। थैंक यू।